Good morning, dear students. Welcome to the online coaching. Dear students, today we are going to discuss lesson number 4 of science, that is carbon and its compound. Dear students, first of all, we should know which portion is there in our syllabus. According to the board guidelines, topic bonding in carbon, the covalent bond, page number 58 is there, 59 page number is there, 60, 61. Then topic is 4.2 versatile nature of carbon, 62 page number, 63 page number, 64, 65, 66, and the nomenclature 67 and the table 68. Till here, starting from the first point till here 68, each and every topic is included according to my point of view and whatever I understand from the board guidelines. 69 page number, that is chemical properties of carbon compound. It is not there in our syllabus, so page number 69 is not there. 70, 71, 72, 73 and 74. But on the page number 74, one topic is there, 4.5 soaps and detergents. That topic is included. Okay, so on page number 74, 4.5 soaps and detergent is included, and here the chapter ends. Okay, now let us start this fourth chapter, that is very important and it is the base of chemistry. Okay, organic chemistry. This is a base of organic chemistry. So chemistry has been divided in three parts: organic, inorganic and analytical. Okay, so this is the topic of organic chemistry. Now dear student, please pay attention. Name of the chapter is carbon and its components. मीन्स आपको तो ये पता होना चाहिए कि कार्बन क्या है. हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, जो ब्लैक कलर का रहता है वही कार्बन है. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द नॉट द ओनली वन प्रॉपर्टी to know this is the carbon. Okay, many things are made up of carbon. In short, most of the things are made up of carbon. The food which we eat, it is also made up of carbon. उसमें भी कार्बन की थोड़ी बहुत मात्राएं रहती है. ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि जो फूड हम खाते हैं वो सारा कार्बन के ऊपर बेस है. सिल्वर जो मेटल है उसमें भी थोड़ा सा अमाउंट कार्बन का रहता है. फ्यूल है, उसमें कार्बन का अमाउंट्स रहता है. ओके, सो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कार्बन कहाँ कहाँ पे है. तो लेट अस नो वेयर द कार्बन इज. फूड, clothes, medicines, books, or many of the things that you have listed are all based on this element named carbon. Food, book, many things. Okay, clothes are made up of carbon. The amount of carbon present in the earth crust and in the atmosphere are as follow. The earth crust has only 0.02 percentage carbon in the form of minerals like carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleum. Dear students, coal, anthracite, lignite, bitumen, all are the types of the coal. The anthracite has 98 to 99 percentage of carbon. Okay, now in the atmosphere, the amount of carbon is 0.03 percentage. Dear students, this was the ratio of the carbon where carbon is used. In short, each and everything has some amount of carbon. तो हमें अभी ये देखना है कि ये कार्बन बेसिकली है क्या. अगर मैं आपको बोलूं ग्रेफाइट, हैव यू सीन ग्रेफाइट?
द पेंसिल लीड, यस दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, वही ग्रेफाइट है पेंसिल लीड। डायमंड, डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट ऑफ कार्बन। देखो डायमंड तो वाइट है, ये डायमंड जो है वो कार्बन का ही एक पार्ट है, ठीक है। दैट इज द हार्डेस्ट, हार्डेस्ट वन, उसको कट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया कार्बन कहाँ कहाँ पे है, कार्बन का इंपॉर्टेंस क्या है, वो अभी हमें पता लगाना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने पढ़ा हुआ था आयोनिक बॉन्ड। तो ये आयोनिक बॉन्ड आपके दिमाग से शायद निकल चुका है, तो मैं आपको रिकॉइल करा देता हूं। आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? प्लीज सी हियर, Na, अभी आपको पता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, Na+1 है, Cl-1 है। मीन्स इसे एक चाहिए नोबल गैस बनने के लिए, इसे एक देना है नोबल गैस बनने के लिए, बिकॉज Na हैज 11 electrons, he wants 10 electrons to become stable. He has 17, he needs one more to become stable. So what will happen, this Na will donate one electron to the chlorine. Okay, so this donation and acceptation take place between the ionic bond, इसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अगर कोई कुछ देता है और दूसरा उसे एक्सेप्ट करता है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? आयोनिक बॉन्ड। ओके, सो आयोनिक बॉन्ड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिए। जो चीजें आयोनिक बॉन्ड से बनी हुई है वो मेल्टिंग पॉइंट में भी हाई रहेगी, बॉइलिंग पॉइंट में भी हाई, और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत ही बढ़िया करेगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आयोनिक बॉन्ड कब होगा, कहाँ होगा, आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर किसी ने कुछ दिया है, किसी ने कुछ एक्सेप्ट किया है, मीन्स ये आयोनिक बॉन्ड ही है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कोवैलेंट बॉन्ड। ये स्टूडेंट्स, ये आपने कभी नहीं पढ़ा, ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। चलो मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। हम बात कर रहे हैं कार्बन की, तो हमें कार्बन का नंबर पता होना चाहिए। वी शुड नो द नंबर ऑफ कार्बन एंड द कार्बन नंबर इज 6। टू बिकम स्टेबल, टू बिकम स्टेबल ही शुड बी 10 और 2। यस और नो? ओके, ये 6 है। अगर मैं इसका शेल यहाँ पे ड्रॉ करूँ, जो पहला शेल है वहां पे तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। चलो अभी ये आउटर शेल है कार्बन का, दिस इज द आउटर शेल ऑफ कार्बन। यहाँ पे 1 2 3 4, टोटल 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 हो गए ना? ओके, तो ये आउटर शेल जो है पूरी, वहां पे अगर 4 और आ जाते हैं तो 8 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 8। अगर यहाँ पे 8 आ गया मीन्स ये हो गया नोबल गैस, ये हो गया नोबल गैस, ठीक है। ये इनर्ट कंडीशन पे चला गया। नाउ प्लीज सी ये डियर स्टूडेंट्स, दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे कहीं से 4 आ जाए, ये पहला ऑप्शन था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 है। दूसरा ऑप्शन ये है यहाँ के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पे चले जाए। सो सेकेंड ऑप्शन, आपको 4 देना है। ये रहा कार्बन का स्ट्रेटजी। कार्बन शुड एक्सेप्ट 4 और कार्बन शुड डोनेट 4। नाउ द कंडीशन इज व्हाट? सी हियर, carbon is in the such a stage that he cannot accept 4 or he cannot give 4. Okay, why? See here, a basic example I will give. Hydrogen has 1 electron, so okay, hydrogen has 1, this is the cross mark. Okay, hydrogen. See now what happened, carbon is eagerly waiting to become 10. Okay,
As you know, in the first shell 2, in the second shell 4, and he is waiting for 4 more. वो और 4 के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे एक जगह खाली है, यहाँ पे भी एक, ऐसा ड्राइंग करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा डिसिप्लिन वाली जगह वहां पे नहीं होती। नाउ एक कार्बन आ गया अपना एक लेके, दिया नहीं है उसको, समझो दिया नहीं है, लेके आया है। यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आया, एक यहाँ पे भी आया। अभी हाइड्रोजन इसे कार्बन के साथ बात कर रहा है, डियर कार्बन, if I will give my one electron to you, then I don't have any electron with me, so let us have a partnership. So carbon is dealing with that hydrogen. Now this partnership, here is also a partnership, here is also a partnership. Dear students, when the two elements combines in a form of partnership, means they are not giving anything, कोई डोनेट नहीं कर रहा है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ पार्टनरशिप पे वर्क कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। उसे क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड आप देख सकते हैं, ये जो बॉन्ड रहेगा वो दो एलिमेंट्स के बीच में रहेगा। देखो यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन का कम्युनिकेशन हुआ है, तो उसे बोलेंगे हम सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ओके। यहाँ पे वर्ड सिंगल के लिए यूज है मोनो। मोनो अगर दो है तो उसे बोलते हैं डाई, ठीक है, क्या बोलते हैं? डाई। सिंगल तो मोनो, डबल तो डाई, ओके। ट्रिपल तो ट्राई, ट्रिपल तो ट्राई। अगर फोर है, अगर फोर है तो उसे हम कहेंगे टेट्रावैलेंट। क्या कहेंगे? टेट्रावैलेंट। फोर के लिए चौपल वर्ड कहीं पे नहीं है टेट्रावैलेंट। फाइव है तो पेंटावैलेंट, ओके, इट इज क्लियर। सिक्स है तो हेक्सावैलेंट। डन, ओके। सो here we are having a partnership of one electron, that is a single bond, okay. It is clear in your mind? Let us move ahead, dear students. So मैंने आपको अभी सिर्फ इतना बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तो आपको पता चल गया कि जो चीज पार्टनरशिप में डीलिंग हुई है उसे हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। दे बोथ आर शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, ओके। Two elements are sharing their electrons, that is known as covalent bond. Now let us see some examples of carbonic compound. This is acetic acid. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, CH3COOH। आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। Acetic acid CH3COOH, this is given in your textbook table, okay. This is a melting point in the Kelvin 290, boiling point in the Kelvin 391. Chloroform CHCl3, melting point is 209 and boiling point is 334. Ethanol, that is CH3CH2OH, ethanol 156351. This is methane, what I have made over here. C, single bond, H, H, H. This is methane, CH4, okay. So methane, that is 90 and boiling point is 111. Dear students, what you have concluded from this? We have concluded that there is a low or less force of attraction between these electrons, okay. So they are very weak. If they are very weak, then they have a very poor conduction of electricity. So जो आयोनिक बॉन्ड है उसका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा हाई है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है इसका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा लो है, ठीक है।
ये रहा हमारा पहला टॉपिक और ये था हमारा पहला पॉइंट. दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड and I have explained you ionic bond also. Now moving ahead dear students, we are moving with single bond. चलो अभी आपको मैं बताता हूँ सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे देखो, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा उसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है दूसरा हाइड्रोजन और ये रहा उसका इलेक्ट्रॉन. अभी ये दोनों हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे. ये हो सॉरी ओके, सो ये है एग्जाम्पल सिंगल बॉन्ड का. सिंगल बॉन्ड ओके, ये शेयर करके हाइड्रोजन से बन गया H2. क्या बना हुआ है? H2. ठीक है. अभी आप बात करो ऑक्सीजन की. किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का नंबर क्या है? 8. ठीक है. इसे कितने चाहिए? 2. इसे चाहिए 2, तभी बन जाएगा 10. तो क्या होता है, वो H2 जिसके पास ऑलरेडी ये 2 है ना, और ये वाला O, तो ये बन गया जॉइंट. ये हो गया H2O. ऐसे फॉर्म हुआ था H2. एक एक बॉन्ड का क्या किया था उसने? पार्टनरशिप, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ था H2. ओके. नाउ मूविंग अहेड डियर स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड. अभी डबल बॉन्ड की बात करते हैं. डबल बॉन्ड, सी स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 6, ये टोटल हो गया 8. ये 8 वाला कौन है? ऑक्सीजन है. 8 वाला कौन है? ऑक्सीजन. अगर यहाँ पे 2 आ जाए, क्या आ जाए? 2. ठीक है. तो ये बन जाएगा 8 और ये 2 10. ऑक्सीजन का काम हो जाएगा. तो हमें क्या करना है? 2 ऑक्सीजन को मिलाना है. ये भी 2 के लिए वेट कर रहा था. चलो ये दोनों को मिला दिया, दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए. सो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो गया O2. डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ क्या बन गया? O2. ओके. अभी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल देता हूँ. ट्रिपल बॉन्ड. नाइट्रोजन. अभी आपको पता है नाइट्रोजन का नंबर है 7, उसका एटॉमिक मास है 14. ये 7 का मीनिंग होता है यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4. यस और नो? सॉरी, गलती है मेरी, यहाँ पे होते हैं 5. ठीक है. ओके. अभी यहाँ पे 8 होना है, तो कितना कम पड़ रहा है? 3. तो ये N अपने 3 की खोज में निकल चुका है और दूसरा उसे N मिल गया. दोनों ने कर ली पार्टनरशिप. तो N ये 3 बॉन्डिंग हुआ, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, उसे कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड. बना क्या? N3 N2, 2 ही है ना. बना क्या? N2. इट इज क्लियर. आपको पता है NH3 क्या होता है? NH3 होता है अमोनिया. यस और नो? तो यहाँ पे क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? N ये वेटिंग में था, H आया, लो ये बन गया NH3. I hope dear students you are able to understand at least 30 to 40% concept what I have explained over here. Thanks for watching this video dear students. Thank you so